to Geeta Global School. So in the first video we were reading chapter number 5, a different kind of school. Today we will continue with the same chapter from your honeysuckle book and we will read the remaining pages. So this is part 2 of the chapter. So students, let's see. So Miss Beam was explaining to the narrator how children becomes both blind and lame on every term and the other children help them. Okay, so let's see what happens next. There is no misery about it. तो कोई डिफिकल्टी नहीं है ऐसा करने में. मिस बीम कंटिन्यूड. मिस बीम आगे बताती गई नरेटर को. Everyone is very kind and it is really something of a game. Before the day is over though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. So ऐसा कुछ डिफिकल्टी नहीं है ऐसे करने में और बच्चे रियलाइज भी करते हैं कि इट इज अ काइंड ऑफ गेम. ओके, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट. सो व्हाट डिड सम ऑफ द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द चिल्ड्रन विच डे इज डिफिकल्ट? डम डे इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर अनेबल टू स्पीक ऑन दैट डे. वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव to exercise their willpower. So Miss Beam informed the narrator that it is very difficult to bandage the mouth of the children. बच्चे हैं भाई, कभी भी बोल ही सकते हैं, कितना भी डम डे है, बट ये बच्चों को ही समझना होगा कि वो डम डे है तो ना बोलें. Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. So Miss Beam asks the narrator to come to the garden and see herself how the children are behaving. Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Here's a gentleman come to talk to you, said Miss Beam, and left us. So Miss Beam tells the narrator that someone has come to meet to the narrator and she leaves from there. Do you ever peep? I asked the girl. So the narrator asked one of the girls in the school that do you ever peep? Then the girl replied to the narrator, oh no, she exclaimed. That would be cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. You feel you are going to be hit by something every moment. It's such a relief just to sit down. So the girl told the narrator that she doesn't cheats and she doesn't peeps, but on a blind day it is better to just sit down because she feels that she might collapse somewhere. Are your helpers kind to you? The narrator asked the girl. Then the girl told that fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. So the girl informed the narrator, they are okay, they are careful, but not as much as me. When it is my turn, I will be very careful. Okay. Those that have been blind already are the best helpers. तो जो ब्लाइंड बन के एक दिन अपना बिता चुके हैं वो बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं क्योंकि उनको समझ है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. इट्स परफेक्टली घैसली नॉट टू सी. आई विश यू वुड ट्राई. सो द गर्ल आस्क्ड द नरेटर टू ट्राई वंस. शैल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड. तो द नरेटर ने उस बच्ची से पूछा, क्या मैं तुम्हें हेल्प करूं, कहीं ले चलूं? Oh yes, she said. Let's go for a little walk. Only you must tell me about things. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. तो वो बच्ची क्या बोलती है नरेटर को, हाँ तुम मुझे लीड करो और जो भी चीजें दिखी बताना क्योंकि आज के तरह दूसरा दिन खराब नहीं हो सकता क्योंकि आज उस बच्ची की आंखों में पट्टी लगी है, उसको दिख नहीं रहा है. Having a leg tied up and hopping about on a crunch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome. तो बच्ची बताती है कि अगर पैर बंधा हुआ है और क्रच पे कोई बैठा है तो मज़ा है, लेकिन अगर आर्म बंधा हो तो बड़ा दिक्कत होता है. ठीक है, खाएं कैसे एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच. तो कहती है अगर बहरे का रोल करना पड़े, डेफ का रोल करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ब्लाइंड बनना बहुत डरावना है, सर दुखता है कि कहीं चोट न लग जाए. तो बच्ची बोलती है कि हम कहाँ हैं? तो नरेटर उसको बताता है कि इन द प्लेग्राउंड.
वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. ठीक है, घर की तरफ जा रहे हैं. फिर नरेटर बताता है कि मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. व्हाट इज द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. तो वो बच्ची बोलती है अच्छा बताना तो वो लड़की ने क्या पहन रखा है. तो नरेटर बताते हैं कि ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज. तो वो लड़की उन कपड़ों से क्या गेस करती है, अच्छा लगता है वो मिली है. आई थिंक इट्स मिली शी सेड. व्हाट कलर इज हर हेयर. फिर वो और कंफर्म करती है नरेटर से, बताना उसका बाल के कलर कैसे हैं. वेरी लाइट आई सेड. तो नरेटर यस दैट्स मिली शी इज द हेड गर्ल. वो कंफर्म करते हैं. फिर नरेटर देयर इज एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेज आई सेड. तो नरेटर बताते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ है और वो गुलाब बांध रहा है. तो नरेटर उसके बच्चे के आंखों पे पट्टी बंधी है, इसलिए नरेटर उसको एक एक चीज बता रहे हैं और वो बच्ची अंदाज रही है कि कौन हो सकता है. तो बच्ची क्या कहती है, यस दैट्स पीटर ही इज द गार्डनर. वो गार्डनर है, उनका नाम पीटर है और उनकी एज कितना है, 100 years old. फिर नरेटर क्या कहते हैं, एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर शी इज ऑन क्रचेज. तो एक लड़की लेम बनी है, क्रचेस पर है और उसके हेयर कर्ली हैं. तो फिर छोटी बच्ची क्या कहती है जिसकी आंखों पे बैंडेज है, अच्छा दैट्स अनीता शी सेड. ओके एंड सो वी वॉक्ड ऑन. और दोनों फिर आगे ऐसे बढ़ते गए. आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. तो नरेटर को लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ जितना मैंने कभी आज तक नहीं सोचा. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. तो नरेटर कहते हैं कि अगर किसी को कोई लोग या किसी के बारे में समझाना हो तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए. When I finally had to leave, तो जब नरेटर को वहां से जाने का टाइम हो गया तो उन्होंने मिस बीम से क्या बोला, आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है जाने में. देन वॉट डिड मिस बीम रिप्लाइड, शी रिप्लाइड देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. तो मिस बीम ने बोला लगता है ऐसा कुछ मेरे सिस्टम में है कि आपको जाने का मन नहीं कर रहा है. सो चिल्ड्रन, पेज नंबर 63. लेट्स क्विकली डू दिस. Match the words and phrases with their meanings in the box. Please write in your books what is the meaning of homesick. Mark number 1, wanting to be home. Practically means almost. It pains me means it hurts me. 4 number, appreciate means understanding and difficulties. Thoughtless means not very caring. 6, exercise means test the strength of. 7th, relief means a welcome change. 8th number, ghastly means terrible. Thank you.